जी आया नू की हाल चाल है? ठीक ठाक हो तुसी? जनाब, कहा जाता है कि किसी कौम की सकाफत, तारीख, फ़न और अदब की उसकी मादरी ज़ुबान का मरहून मिन्नत होता है। तो इलाकाई मादरी ज़ुबानें मुनफरिद अंदाज़ फ़िक्र और हुस्न रखती हैं, और मादरी ज़ुबान ना सिर्फ इंसान की शनाख्त और इजहार का ज़रिया है, बल्कि बेशकीमत रिवायात भी रखती हैं। और किसी ज़ुबान के मतरूक होने का मतलब उस पूरी सकाफत का मतरूक भी हो जाना है। और मादरी ज़ुबान किसी भी शख्स की वो ज़ुबान होती है जो उसे अपने घर और ख़ानदान से विरसे में मिलती है। और मादरी ज़ुबानों के तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के लिए हर साल 21 फरवरी को मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन यानी कि माँ बोली त्योहार मनाया जाता है। और एक तहकीक के मुताबिक ये कहा जाता है कि इस वक्त दुनिया की 40% जो आबादी है उस ज़बान में तालीम हासिल करने से महरूम है जो वो बोलती है या फिर समझती है। और माहिरीन का कहना है कि जब वालिदैन अपने बच्चों को मादरी ज़ुबान नहीं सिखाते तो ज़बानों के मतरूक होने का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। और पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक मुल्क में मुख्तलिफ लहजों के फ़र्क से 74 ज़ुबानें बोली जाती हैं, और सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो ज़ुबान है वो पंजाबी है, जिसे 48% अफराद बोलते हैं। तो मादरी ज़ुबानों का इस्तेमाल मायूब क्यों समझा जाने लगा है? मादरी ज़ुबानों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन हो सकता है? इस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूसुफ। पंजाबी है, राइटर है, कॉलमिस्ट है और पंजाबी संकेत पाकिस्तान के फाउंडर मेंबर भी हैं, तो उनको खुश आमदीद कहते हैं। यूसुफ साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं आप? यूसुफ साहब, आज मादरी ज़ुबान का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है और हमारी मादरी ज़ुबान जो है वो पंजाबी है, तो उसमें ही बात करेंगे कि हमें कहा जाता है कि माँ जैसे हमें बोलना सिखाती है, लेकिन हमारी जो मादरी ज़ुबान है वो हमें इजहार करना सिखाती है कि हमने इजहार किस तरह करना है। लेकिन फिर हम अपनी मादरी ज़ुबान, अपनी माँ बोली को क्यों भूलते जा रहे हैं, क्यों फरामोश करते जा रहे हैं? क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੌਣੇ 2 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿੰਦੇ, ਚਿੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੌਣੇ 2 ਸਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਡਾ 80+ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਤਾਲੀਮ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਨਲਿਟਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਲਿਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਹ ਲਵੋ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਹ ਲਵੋ, ਉਹ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਐਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਹੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਬੰਗਾਲੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਮੁਲਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਓਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ किथे जा रहे हैं। मतलब हम उन्होंने अपनी जुबान या अपनी सकाफत को पीछे नहीं छोड़ा ना। नो, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮਮਾਲਿਕ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ दुनिया के खिते कोई भी अपनी जुबान पे कंप्रोमाइज़ करने वास्ते सिवाय पंजाब तैयार ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। यूसुफ पंजाबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, सहरोश अजीज़ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पंजाबी ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी सरगर्म कारकुन भी हैं। सहरोश, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सहरोश, जैसे आपको पता है कि आज मादरी ज़ुबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हमारी मादरी ज़ुबान जो है वो पंजाबी कहा जाता है उसको। तो मुझे बताइए, एक ज़बान का मादूम हो जाना किसी सानहे से कम नहीं होता है क्या? उस ज़ुबान की वजह से हम अपनी सकाफ़त और अपनी तहज़ीब को क्या पीछे छोड़ देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कोई भी ज़बान जो है एकदम से मरती नहीं है। हाँ। उसके पीछे एक पूरा माइंडसेट जो है वो बनाना पड़ता है। हम आज जहाँ पे खड़े हैं, हम दो चीज़ें फेस कर रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल लेवल पे और दूसरा जो है बेसिक लेवल पे आम लोगों की जो माइंडसेट बन चुका है, वो अपनी ज़बान को जो है वो एक बैकवर्ड लैंग्वेज समझते हैं, डेरोगेटरी लैंग्वेज समझते हैं, उसको जो है बोलने में आर महसूस करते हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर हम चाइना चले जाएँ, वहाँ पर हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम टर्क्स से जो है इतना इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन जो है हम उनसे क्या सीख रहे हैं? चाइनीज़ पीपल जो हैं वो अपनी ज़बान को जो है बहुत वो कोई ना इंग्लिश बोलते हैं ना कोई और लैंग्वेज, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को जो है वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे रखते हैं। हाँ। और इसी तरह अगर हम तुर्किश लोगों को देखें तो वो भी जो है ना अंग्रेज़ी बोलते हैं, ना अंग्रेज़ी समझते हैं और ना वो बोलना चाहते हैं। हाँ। और सीखना भी नहीं चाहते। लेकिन हम जो है अंग्रेज़ी के पीछे चल रहे हैं और हमें जो है अरबी पढ़ाई जा रही है, हमें जो है उर्दू के पीछे लगा दिया गया, लेकिन जो हमारी बेसिक लैंग्वेज है उसे हमें दूर रखा गया। और ये जो है एक माइंडसेट बहुत अरसा पहले से बनाया गया। जब पाकिस्तान जो है वजूद में आया तो सबसे पहले तो है जब अंग्रेज़ ने कब्ज़ा किया बरसगीर पे, तो जितनी मज़ाहमत पंजाबियों की तरफ से हुई थी, तो उस चीज़ का जो है इम्पैक्ट हमें आज नज़र आता है कि वो चीज़ जो है पंजाबियों से जो है उनकी ज़बान छीन ली गई। क्योंकि ये आपने भी सुना होगा कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उनसे जो उनकी ज़बान छीन लें। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो बिल्कुल नाकारा और नाकाम होकर रह जाएंगे और आज वो आपके सामने। बिल्कुल ऐसे ही है कि पंजाबी जो नेशन है ये एक मुंतशिर कौम है, क्योंकि ज़बान जो होती है वो एक कौम को एक लड़ी में पिरोने का नाम है।